A very good morning, children. Welcome to the cytology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home also. I suggest, as I always suggest you, so today also I am suggesting you to be keep yourself positive and make you study hard, do the time management, and always think rationally and positively. So with this children, I am going to start my topic of today, which is learning disability. So I'm showing you, or I can say that I'm explaining you this topic with the help of a slide which I have made. So I'm going to show you these slides and I hope you all do the fun learning. So basically learning should be done with enjoyment. It's not should be done with a burden. So children, learning disability ये topic जो है, this topic is related to your chapter learning. Okay, so welcome to you all. It's a welcome page. Okay, children. Now you can see it is written over here, learning disabled children. आप देख सकते हो, it is very much clear shown in the pictures also. पिक्चर्स में भी दिख रहा है कि एक चाइल्ड है जो कि बहुत ही काइंड ऑफ स्ट्रेस है, लाइक डिसअपॉइंटमेंट. तो बेसिकली ये जो टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज मींस कुछ लोग होते हैं दोज हु आर सम आर अनएबल टू लर्न प्रॉपर्ली. डिसेबिलिटी मीन्स अनएबल टू डू एनीथिंग. तो अनएबल टू लर्न, कोई भी चीज सीखने में उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज को समझने में उनको प्रॉब्लम होती है. तो ये सारे प्रॉब्लम है जिससे वो फेस आउट करते हैं. यहाँ पे एक बच्ची शो हो रही है और ये जो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हम लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन कहते हैं, ठीक है, जो सीख नहीं पाते. तो ऐसे बच्चे हमेशा डिसअपॉइंटमेंट होता है उनमें, फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आता है, मीन्स देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी इमोशंस. Here it is written, those who suffer from serious learning disabilities and exhibit exceptionally inferior capacities in terms of learning and understanding in comparison to the normal children. Here is a definition of the learning disabled children. लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें बहुत ही सीरियस लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं और ये लोग इंफीरियर कैपेसिटी शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल वन. ओके, you can see children, here are some of the characteristics of the learning disabled children. Here it is the characteristics of the learning disabled child. तो आप देख सकते हैं the three pictures are also there. आप देख सकते हैं ये बच्चा बहुत ही confused है, ये पूरे puzzled है और ये doubt में है. तो ये होता है, ऐसे बच्चे जो learning disabled children जिन्हें हम कहते हैं या जिनमें learning disabilities होती हैं, वो हमेशा confused रहते हैं. उनको समझ में नहीं आता वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, whether they are right or wrong, means they always in a confusion. So here are given some of the characteristics of a learning disabled children. First one is they suffer from serious learning problem. Secondly, they exhibit symptoms of hyperactivity. हाइपरएक्टिव होते हैं ऐसे बच्चे, बहुत ही ज्यादा. एक होता है कि द चाइल्ड इज एक्टिव, ओके, द चाइल्ड इज वेरी एनर्जेटिक, बट ऐसे बच्चे जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं.
ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट द सिम्टम्स ऑफ इम्पल्सिविटी, उनमें कुछ इम्पल्सिविटी के भी सिम्टम्स आते हैं, लाइक वो बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं, तुरंत ही क्विकली लूज कंट्रोल उनका होता है। ठीक है। suffer from emotional problems. So children, these characteristics you should keep it in mind. Suffer from serious learning problems, exhibit symptom of hyperactivity, demonstrate the symptoms of impulsivity. They suffer from emotional problem. Emotional problem से भी वे लोग suffer करते हैं. Have robust body या good vision, sound ears and normal intelligence. ठीक है, ये characteristics होती हैं उनकी. Exhibit a significant educational discrepancy. Educational discrepancy देखने को मिलता है, difference देखने को मिलता है. मीन्स कहने का ये है कि जो उनके एज के बच्चे होते हैं या तो उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं, तो एजुकेशनल डिफरेंस मिलेगा. Demonstrate soft neurological sign and EEG irregularity. अगर इन सब बच्चों का हम EEG कराएं, EEG is a method which is used to do the scanning of the brain. ये एक मेथड है जिससे ब्रेन की स्कैनिंग होती है. EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम. इसमें वेव्स आते हैं जो हमें आपके माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं. तो ये देखा गया है कि उसमें इरेगुलरिटीज पाई जाती है जो बच्चे लर्निंग डिसेबल होते हैं. कुछ न्यूरोलॉजिकल साइन भी होता है. कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज. लर्निंग डिसेबिलिटीज के कॉजेज क्या हो सकते हैं? ठीक है, ये हम लोग देखते हैं. ये भी पिक्चर्स आप देख रहे हो, ये सारे पिक्चर्स डिपिक्ट कर रहे हैं काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन. Here are some 3 pictures. Then next it is okay. You can see here the first picture is given. They are the teacher. जिन्होंने लर्न, मतलब टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर बच्चे को अच्छा टीचर मिल गया तो उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज को भी एबिलिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं. ये पिक्चर है, दिस इज अ मूवी, दिस इज अ पिक ऑफ द तारे ज़मीं पर यू ऑल हैव सीन, एंड दैट चाइल्ड इज फेसिंग द लर्निंग प्रॉब्लम. वो लर्निंग डिसेबिलिटीज उसमें थी. ऑटिज्म का डिसलेक्सिया का वो उसको प्रॉब्लम थी. तो अनएबल टू आइडेंटिफाई द लेटर्स एंड सिंबल. और सबको ये लगता था कि क्या बात है, क्यों नहीं बच्चा पढ़ रहा. तो पेरेंट्स को यही लगता था या टीचर्स जो भी थे उनको यही लगता था कि पढ़ नहीं सकता, पढ़ नहीं पा रहा है. तो जब हम बच्चे खुद ही प्रॉब्लम में होते हैं, अपनी प्रॉब्लम को लेके होते हैं, और ओवर द अबव हम लोग भी उनके अपने एक्सपेक्टेशंस उन पे डाल देते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके माइंड पे पड़ता है, विच इज वेरी हार्मफुल. Here is also a picture of different movies where the teacher is helping that child. So here we are studying about the causes of learning disability. Learning disability के causes क्या क्या हैं? तो सबसे पहले होता है जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर. ठीक है, क्या क्या causes हैं? सबसे पहले जेनेटिक मीन्स अगर किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज है, लाइक डिसलेक्सिया का पेशेंट है, पर्सन है, या ऑटिज्म का है, तो वो जेनेटिक भी उसका रीजन हो सकता है, हेरिडिटी फैक्टर भी हो सकता है. ठीक है, हो सकता है मम्मी पापा या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर में से ऐसी प्रॉब्लम कभी किसी को हुई हो, तो दैट जीन्स में केम. नेक्स्ट रीजन हो सकता है ऑर्गेनिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर. ऑर्गेनिक और फिजियोलॉजिकल मीन्स कुछ फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी के फैक्टर्स हो सकते हैं, which we can say that biological factor. जेनेटिक फैक्टर के अलावा कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, लाइक प्रॉब्लम इन द ब्रेन और प्रॉब्लम इन एनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, प्रॉब्लम इन न्यूरॉन्स, हॉर्मोन्स. ओके चिल्ड्रन, तो ये चीजें आती हैं इसमें. Environmental factors. See, here you get a very interesting pictures also, which are related to the causes. You can see genetic or hereditary factor में ये pictures show हो रहे हैं. Organic में brain, and you can see that organic factor. Now here is the environmental factor. आप देख सकते हैं बच्चे का environment भी कई हद तक उसको affect करता है.
तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग लर्निंग डिसेबल्ड, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो बच्चा है उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस भी हैं, टेस्टिंग डिवाइसेस भी हैं। कुछ नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस का यूज आप कर सकते हो, जैसे कि ऑब्जर्वेशन करना, इंटरव्यू लेना, ठीक है। टेस्टिंग डिवाइसेस में आपके आएंगे स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जो बच्चे के को डायग्नोस करेंगे कि उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है। देन है स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वी हैड डिस्कस एबिलिटी टेस्ट या प्रोसेस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, ये सारे भी आपको कई हद तक आपको बताएंगे इसके बारे में। एबिलिटी टेस्ट है हो रहा है, या प्रोसेस टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट। डेली असेसमेंट सिस्टम भी बता सकते हैं। ये देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को क्या, विच दिस पिक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज शोइंग बेसिकली द एरियाज ऑफ प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एरियाज जैसे कहाँ दिखता है, स्पेलिंग एरर दिखते हैं। एजुकेशन में भी वर्ड्स, जैसे तारे जमीन पे उसको वर्ड्स की प्रॉब्लम थी, उसको ई राइट अपोजिट वर्ड्स लाइक बी को डी लिखना, ऐसा दैट इज डिस्लेक्सिया प्रॉब्लम। रीडिंग भी प्रॉब्लम एक एरिया है। हेल्थ है, लाइफ, करियर, ओके, मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सब प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड। Moving to the next slide. Now we will discuss one by one what are the symptoms of the learning disabled children. Symptoms क्या होते हैं, and or you can say the problem which are faced by the learning disabled children. जिनमें सबसे पहले आएगा हैंड राइटिंग प्रॉब्लम। जो बच्चे लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं उनमें ये देखा गया है, सो जो बच्चे लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आप अक्सर देखोगे, इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट हैंड राइटिंग प्रॉब्लम तो नॉर्मल लोगों को भी होता है, ठीक है। यू कैन से दैट जिनमें ऑन होम लर्निंग डिसेबिलिटी इज नॉट प्रेजेंट, जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी प्रेजेंट नहीं भी होती है फिर भी उनमें उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। और जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो एक अलग ही पैटर्न ऑफ हैंडराइटिंग उनकी होती है, बहुत ही अलग पैटर्न ही वो शो करते हैं। आप देख सकते हो हैंडराइटिंग स्ट्रगल फॉर ऑटिस्टिक किड्स, ये आप देख सकते हो कैसे बच्चे लिखे हुए हैं। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ देयर राइटिंग। आप देख सकते हो कैसे उनकी राइटिंग है। ओके, तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है उनके साथ, हैंड राइटिंग इशू। ओके, हैंड राइटिंग प्रॉब्लम। Now moving to the next one, spelling problem, स्पेलिंग एरर। आप देख सकते हैं यहाँ एक शीट है बच्चे की, इसमें स्पेलिंग एरर कई जगह किए हैं जिसे टीचर ने रेड मार्क से सर्कल किया है, ठीक है। तो क्या होता है, स्पेलिंग एरर होता है। ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, दे यूजली डू अ वेरी मैक्सिमम मिस्टेक्स इन द स्पेलिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम उनके साथ क्या आता है, रीडिंग प्रॉब्लम एंड डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया वही मैंने बोला ना, जस्ट अपोजिट उल्टा लिखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे डिसलेक्सिया कैसे लिखा हुआ है, एल। So children, you can easily see in that dyslexia में भी L आप देख सकते हो, it's just opposite E, okay? आप देख रहे हो, इसी तरह वो बच्चे भी लिखते हैं जिनको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आप देख सकते हो पिक्चर विच वाज शोन अ वेरी सैड, मतलब वे लोग अपने में ही परेशान रहते हैं। दे आर अनएबल टू लर्न, दे अनएबल टू रीड। जैसे आप ही हैं, कोई काम आप कर रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा है,
तो आपको इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, द सेम फीलिंग दे आर फेसिंग बट दे आर अनएबल टू डू। आप फिर भी अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शॉर्ट आउट कर लेते हो, कहीं ना कहीं से सोच लेते हो, बट दे आर हेल्पलेस। वो नहीं, उनको नहीं समझ में आता कि ये क्यों हो रहा है उनके साथ और उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो दे रियली रिक्वायर्ड अ प्रॉपर हेल्प, अ प्रॉपर गाइडेंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ये लोग को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी होती है। तो हमने क्या क्या जाना, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हैंड राइटिंग प्रॉब्लम, क्विकली रिवाइज करेंगे। हैंड राइटिंग प्रॉब्लम, देन रीडिंग प्रॉब्लम, देन स्पेलिंग प्रॉब्लम। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कम्युनिकेट करने में जैसे कि स्टैमरिंग भी करते हैं ऐसे बच्चे, और क्लियर नहीं होते उनके थॉट्स और उनके कम्युनिकेशन। उनके पास कभी कभी वर्ड्स नहीं होते कि व्हाट दे हैव टू स्पीक। You can see here some of the figures have shown the communication problem. Like for example, you can see here the big fish is asking, do we have ear? What? Means teachers भी ऐसे ही होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन से क्वेश्चन करते हैं पर वो आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो भी मैसेज आपने भेजा वो सेकंड पर्सन उसे गैदर कर रहा है और उसे एक मीनिंग दे रहा है। पर जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वे समझ ही नहीं पाते, तो हाउ दे कम्युनिकेट। जब तक आप मेरी बात नहीं समझोगे आप कैसे मुझसे बात करोगे या कैसे मुझसे कम्युनिकेशन करोगे। तो यही प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द थिंकिंग एंड रीजनिंग प्रॉब्लम। You can see here different figures were shown, a very beautiful figures were shown which show that they have a thinking and reasoning problem. ठीक है, सोचने की भी प्रॉब्लम होती है और रीजनिंग की भी प्रॉब्लम होती है उनके साथ। Deficiencies in social skill are very beautifully present in this slide about the symptoms of the learning disability. Next is deficiency in social skill. Social skill means interaction with the society, interaction with the people, or how to handle them, how to talk with them, communication कैसे करें, ठीक है, शेयरिंग और एवरीथिंग कम इन द सोशल स्किल। तो उनकी भी डेफिशिएंसी होती है उनमें। आप देख सकते हो यहाँ पे जो टीम वर्क वाला कंसेप्ट आ रहा है वो नहीं कर पाते, फ्रेंडशिप इंटरवेंशन यूनिट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ हो रही है। Attention deficit, another very important symptom of the learning disabled child. Attention deficit होते हैं वे लोग। आप देख सकते हो ये बच्चा, yeah, or you can see this child. You can see this is the appropriate. The teacher is teaching, and the child is seeing outside or thinking something. In this picture also the teacher is teaching and the child is making an aeroplane or paper aeroplane and make it to fly. तो ये क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट होता है उनमें, ठीक है, अटेंशन वो नहीं दे पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स लर्निंग डिफिकल्टी, मैथमेटिक्स को लर्न करना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, तो ये ट्रू है, मैथमेटिक्स लर्निंग डिफिकल्टी उनमें होती है। क्या क्या चीजें हमारी गवर्नमेंट कर रही है फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, दिस वी हैव टू स्टडी। एजुकेशनल प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन, एजुकेशनल प्रोविजंस मिल रहे हैं, जैसे कि पहला आता है प्रोविजन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्कूल, ठीक है, कुछ स्कूल्स बनाए गए हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं। स्पेशलाइज मीन स्पेशल स्कूल है जिसमें जिन बच्चों को ऐसी कोई डिसएबिलिटीज हैं तो वो उनका प्रॉपर
गाइडेंस कर सकें। So, provision for the special remedial and educational program, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे एक स्पेशल एजुकेटर भी बहुत से स्कूल में अपॉइंट होते हैं इन बच्चों के लिए, जो दोज हु आर वर्किंग ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इम्प्रूव द लर्निंग डिसेबिलिटीज अमंग द चिल्ड्रन। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं फॉर स्पेशल रेमेडियल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी हैं इसके लिए। Moving to the next slide, structuring and improving the existing environment setup. Existing environment setup जो अभी है उसको भी improve करने की कोशिश हो रही है, प्लानिंग हो रही है, स्ट्रक्चर हो रहा है, जिससे कि बच्चे को एक अच्छा environment मिले। Specialized approaches and technique for helping the learning disabled. इन प्रोविजंस के अलावा कुछ टेक्निक भी हैं जिनसे हम लोग लर्निंग डिसेबल्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे बिहेवियर थेरेपी भी दी जाती है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट अप्रोच, साइकोएनालिटिक अप्रोच देख सकते हैं, क्लिनिकल एंड मेडिकल अप्रोच भी है। तो ये सारे चीज़ों का यूज करके हम लोग लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग ने ये जाना कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी क्या प्रॉब्लम वे लोग फेस करते हैं, क्या सिम्टम उनके होते हैं, और उन्हें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या क्या टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे कि लर्निंग डिसेबिलिटी को ठीक किया जा सकता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ वेरी सीरियस टॉपिक ऑल्सो। So I hope this topic is very much clear to you all. So students, after the discussion about the learning disability, I'm going to discuss with you about the Pavlov experiment, which is also a part of your syllabus. And Pavlov experiment was on classical conditioning. So let us study about that one. First of all, what is conditioning? You should know. So conditioning in behavioral psychology is a theory that the reaction to an object or event by a person or animal can be modified by learning or conditioning. यानी आप किसी स्टिमुलस के टुवर्ड अगर रेस्पॉन्स कर रहे हो तो आपकी एक तरह से लर्निंग हो रही है, कंडीशनिंग हो रही है. So SR theories are central to the principle of conditioning. They are based on the assumption that human behavior is learned. अगर स्टिमुलस के टुवर्ड हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम बिहेवियर, पर्टिकुलर बिहेवियर इज लर्न. You can see it is depicted by this in this pie chart, this way. You can see stimulus is here, provided by the instructor, response by the learner, reinforcement provided by the instructor. So learning is behavior change. Here it is also described the meaning of stimulus and response. Stimulus क्या है? A thing or event that evoke a specific reaction in an organism. Response क्या है? A reaction as that of an organism or a mechanism to a specific stimulus. देखो, लर्निंग या कंडीशनिंग कई तरीके से हो सकते हैं. हम लोग एसोसिएशन से भी लर्न करते हैं, हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस से भी लर्न करते हैं, हम लोग ऑब्जर्वेशन से भी लर्न करते हैं. तो डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग आर देयर. उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके नाम भी है. अगर हम लोग एसोसिएशन के थ्रू हमने लर्निंग की है तो दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग. हमने कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट के थ्रू लर्निंग की है तो दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग. अगर हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्निंग की है तो दैट इज मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को समझते हैं अच्छे से. क्लासिकल कंडीशनिंग is a learning process that occurs through association between an environmental stimulus and a natural occurring stimulus. It had a major influence on behaviorism, which is based on the assumption that learning occurs through interaction with the environment.
इवन पी पैवलोव ने ये इतना अच्छा, आई कैन से दैट अ वेरी गुड कंडीशनिंग मेथड दिया था. Here is a picture of the Pavlov. Many of you have seen it also. So little bit introduction about him. We had known that he was born on September 26th. So he's born in September 26, 1849. He was awarded the degree of Candidate of Natural Science in 1875. Was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine 1904 in recognition of his work on the physiology of digestion. Okay, and he was dead in Feb 27. अगर हम लोग कंपोनेंट्स देखें क्लासिकल कंडीशनिंग की, ये सारी चीजें बच्चों आपने पढ़ी हैं. एक कंडीशन स्टिमुलस होता है, एक अनकंडीशन होता है, कंडीशन रिस्पॉन्स होते हैं, अनकंडीशन रिस्पॉन्स होते हैं. तो अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है? अ स्टिमुलस that naturally and automatically trigger a response. ठीक है. और unconditioned response क्या है? The unlearned response that occur naturally in response to the unconditioned stimulus. Means unconditioned stimulus means कुछ उसमें आपने सब चीजें naturally हो रही हैं, कोई भी चीजें अभी कंडीशन नहीं है. रेस्पॉन्स में भी क्या हो रहा है कि अनलर्नड रेस्पॉन्स है. नाउ कंडीशन स्टिमुलस क्या है? अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस दैट व्हेन पेयर्ड विद एन अनकंडीशनड स्टिमुलस ट्रिगर अ कंडीशन रेस्पॉन्स. अब उस कंडीशन स्टिमुलस के अगर उस कोई रेस्पॉन्स से हम लोग उसको एसोसिएट कर देते हैं तो वो कंडीशन स्टिमुलस हो जाता है. और कंडीशन रेस्पॉन्स क्या है? लर्नड रेस्पॉन्स टू द प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस. बेसिकली कंडीशन मीन्स होता है कोई कंडीशन मीन्स एसोसिएशन फॉर्म हो गया है. अनकंडीशन मीन्स अभी कोई एसोसिएशन फॉर्म नहीं हुआ है. You can see here unconditioned stimulus, unconditioned response देगा. कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स देंगे. क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे एक्विजिशंस होते हैं. इट्स नॉट ओनली द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, इट इज ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ ऑल टाइप ऑफ लर्निंग. एक्विजिशन होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है. ये सभी तरह के लर्निंग के साथ होता है. एक्विजिशन मीन्स होता है एक्वायर करना, आप लर्निंग एक्वायर करते हो. एक्सटेंशन मीन्स जो भी आपने सीखा है वो कभी कभी गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कभी कभी वो चीजें वापस आ जाती हैं. ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवर हो जाता है. स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी आप जनरलाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन भी कर लेते हो. अगर लर्निंग हो जाती है तो आप समझ जाते हो कि ये चीजें सिमिलर हैं और ये चीजें डिफरेंट है. सो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो सभी लर्निंग प्रिंसिपल्स के होते हैं. आगे बढ़ते हैं. पेवलोव का एक्सपेरिमेंट समझते हैं. स्टे थ्रू, इट्स वेरी ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड द पेवलोव एक्सपेरिमेंट. You can see the before conditioning. This is a situation of before conditioning. This is also a situation of before conditioning. This is a situation of during conditioning. And this is a situation of after conditioning. बिफोर कंडीशनिंग में आप देख सकते हो अनकंडीशन स्टिमुलस जो है फूड है और अनकंडीशन रिस्पॉन्स सलाइवेशन. फूड को देख के ऑब्वियसली बात है, फूड को देखोगे तो सलाइवेशन होती है. आपका फेवरेट फूड होता है तो जैसे इमेजिन करो आपके सामने डेयरी मिल्क है तो ऑब्वियसली बात है. तो ये क्या है? नेचुरल रिएक्शन है, नेचुरल रिस्पॉन्स है. नाउ बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले क्या हो रहा है? अब फूड की जगह इन्होंने विसल रख दिया है. विसल इस समय न्यूट्रल स्टिमुलस है क्योंकि अभी तक कंडीशन नहीं हुआ है, तो न्यूट्रल स्टिमुलस है. रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? नो सलाइवेशन. बेल की वजह से उसको कोई सलाइवेशन नहीं हो रहा है. नाउ ड्यूरिंग कंडीशनिंग, उसी अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अब कंडीशनिंग के समय क्या कर रहे हैं? विसल रख रहे हैं और साथ ही साथ फूड भी दे रहे हैं, सलाइवेशन हो रहा है. अब इसी तरह कई सारे ट्रायल्स करने के बाद आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है? यानी डॉग ये लर्न कर जाता है कि बेल है, तो यानी वो एसोसिएट कर लेता है बेल को फूड से. तो ये लर्न हो जाता है, अच्छा बेल हुआ यानी विसल हुई तो फूड आएगा.
So now whistle will become the conditioned stimulus and salivation is now conditioned response. I hope classical conditioning method आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए होगा. It is very well presented and I hope it is a very useful for you. This slide you can have it with me anytime. Next. So here's an outline of Pavlov experiment. Here's an outline of Pavlov experiment. One second. You can see children here, conditions was given before conditioning, during conditioning, after conditioning. The figure which was shown here, it is the outline of this figure is written over here. So it is very beautiful explanation of classical conditioning. Now types of conditioning. Types of conditioning means there are some factors which determine the classical conditioning. कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं. आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है, फॉरवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, ओके, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, डिले कंडीशनिंग. तो ये सारे हैं क्या, ठीक है, इनको हम समझेंगे. देखो, फॉरवर्ड कंडीशनिंग मीन्स occur when the neutral stimulus appear just before and during the presentation of the unconditioned stimulus. न्यूट्रल स्टिमुलस आपका क्या है, बेल आप या फिर विसल है, वो जैसे ही अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि आपका फूड है और उसके जस्ट बाद आ रहा है, ठीक है, उससे पहले आ रहा है, जस्ट बिफोर या उसी समय आ रहा है, ठीक है, यानी फूड जब प्रेजेंट किया जा रहा है तो उसी समय या तो विसल कर रहे हैं या उससे पहले कर रहे हैं, थोड़ा सा पहले. इसके भी दो टाइप होते हैं, डिलेड और होता है ट्रेस. डिलेड में क्या होता है, सीएस प्रेजेंट हो रहा है यूएस से पहले, यानी सीएस आपका है विसल और वो प्रेजेंट हो रहा है फूड से पहले, ठीक है, यूएस फूड है, एंड सीएस सेज ऑन अंटिल द यूएस इज प्रेजेंटेड, ठीक है, वो रहता है, स्टे रहता है जब तक यूएस नहीं आ जाता. तो ये क्या है, डिले कंडीशनिंग होता है. ट्रेस क्या है, डिस्क्रीट इवेंट इज प्रेजेंटेड देन द यूएस आकर, shorter the interval the better, but as you can tell this approach is not so much effective. Backward है, simultaneous है, ये सारे आपने बुक में बहुत अच्छे से स्टडी किए हैं. कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग का. एक एक्सरसाइज आपके साथ सभी कोई करेंगे. क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर फेवरेट फूड, ठीक है, ये आप करिएगा, अपने आईज को क्लोज करना है और अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचना है. आई होप आप सभी ने सोच लिया होगा. नाउ इस फिगर को देख के क्या फील हो रहा है, ये आप सभी को मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस वन. सो आई होप, आई थिंक सलाइवा आ रहा होगा आप सभी के माउथ में, बिकॉज मेरे तो बहुत आ रहा है. सो इट्स रियली लुक यमी. नाउ सी दिस वन, इज इट यमी? क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं? Is your mouth watering? If yes, it's because you are conditioned. आप conditioned हो. Okay, so I hope children we had done with the classical conditioning. A conclusion, in the conclusion हम लोग क्या समझे ये समझ लेते हैं. Although Pavlov disliked cytology, his work remained one of the most important in cytology history. According to Pavlov, conditioned reflexes were temporary or unstable, and he himself expressed that it is not an ideal education theory. Classical conditioning is actually not a change in the behavior, but a similar response to a different stimulus. It is ineffective for classroom purposes. So these are some of the conclusion. So at last, I should thank you for patiently listening to me. And I hope these two topics are very much clear to you all.
Still, if you feel any doubt, ask me in the classroom. I'm there to solve any of your queries. Thank you so much once again.